Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video of Miss Technology about C++ learning. So, today our topic is data structure. First, I'll tell you that what is data structure. Then onward I will tell you the more concepts. Data structure. A structure is a collection of variables of different data type under a single name. It is similar to the class in the both hold a collection of different data types. For example, you want to store some information about person, girl or boy. You need some common things like name, citizenship number, salary. You can easily create different variables. For example, name, citizen, salary to store these information separately. However, in the future, you want to store the information about multiple persons, you need to create different variables for each information per person. For example, name 1, citizenship number 1, salary number 1, name 2, citizenship number 2, salary 2. I hope you understand. Now, you can easily visualize how big and messy the code would look. Since no relation between the variable information would exist, it's going to be the daunting task. The better approach will be have to the collection of all related information under a single name person and use it for every person. Now the code looks much cleaner, readable and user readable form and efficient as well. This collection of all related information under a single name is the structure. तो अब मैं आपको हिंदी में या उर्दू में बताता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर असल में होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बहुत से डेटा टाइप का एक कलेक्शन होता है जहाँ पे हम डिफरेंट डेटा टाइप के एक सिंगल नेम में लिख देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी फील्ड में किसी भी क्लास में हर बंदे के लिए हर टीचर के लिए हर किसी भी इंस्टीट्यूट में लोगों के दरमियान कोई ना कोई कॉमन चीज़ होती है। जहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि हम चाहते हैं कि स्टोर की इंफॉर्मेशन निकालनी है, हमने किसी बंदे की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो उसका नाम, उसका सिटीजनशिप नंबर, उसकी सैलरी। अगर ऐसे ही बहुत से लोग हों और उनका नाम, सिटीजनशिप नंबर, सैलरी अलग अलग करके लिखेंगे तो कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस काम के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है जहाँ पे एक दफ़ा में ही इन चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसे कि सिटीजनशिप नंबर, नेम और सैलरी। एक दफ़ा हमने इन चीज़ों को ऊपर डिफ़ाइन कर दिया, इनके डेटा टाइप को डिफ़ाइन कर दिया, हम पूरे लाइन ऑफ कोड में उसको रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होती है, यूज़र रीडेबल फॉर्म होगी जिसको हम इजीली पढ़ सकते हैं ताकि पढ़ने वाले के लिए आसानी हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं जब हम ये सब कुछ सेपरेटली लिखेंगे तो ये कोड कैसा लगेगा, कैसा इतना बड़ा सा लगेगा जिसको हम ना पढ़ सकते हैं ना कोई इसको पढ़ेगा। तो ये एक इजी वे हुआ ना कि हम इसको एक ही जगह पर इसके जो इम्पोर्टेंट और कॉमन इंफॉर्मेशन है इसको एक ही जगह पर डिफाइन कर दें और उसके बाद पूरे प्रोग्राम में डिफरेंट पर्सन्स के लिए यूज़ कर लें। तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस सिंटैक्स। सी प्लस प्लस द सिंटैक्स is the layout of words, expression and symbols. Well, it's because an email address has its well-defined syntax. You need some combinations of letters, numbers,
potentially with underscores or periods in between, followed by an rate under the rate symbol, and followed by the some website domains company.com. So syntax is the programming language is is much the same. They are some well defined and set of rules that allow you to create some piece of well functioning software. But if you not abide by the rules of the programming language syntax, you will get errors. अब आपको मैं उर्दू में बताता हूँ कि सिंटैक्स किसी भी चीज़ को लिखने का अंदाज, किसी भी सिंबल को लिखने का अंदाज, किसी भी एक्सप्रेशन को मैथ में जैसे हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो एक वो रूल के साथ लिखते हैं, उसके बहुत से रूल्स होते हैं, अगर हम उस रूल को ब्रेक करेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। इसी तरह सी प्लस प्लस में भी कुछ रूल्स हैं जहाँ पर जिनका हमें बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है, जिनमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर, पोटेंशियली अंडरस्कोर का ये साइन होता है, ये अंडरस्कोर का साइन है, ये पीरियड जिसको हम डॉट भी कहते हैं, और हम इसको हम एट द रेट भी कहते हैं, ये एट द रेट का साइन है, और ये डॉट का साइन जो कि डोमेन में इस्तेमाल होता है, वेबसाइट्स की डोमेन में। अगर हम इन रूल्स को ब्रेक करेंगे तो ये हमें बहुत से एरर्स देगा। तो हमें अगर एरर फ्री कोड और प्रोग्राम बनाना है तो हमें इन सब रूल्स का ख्याल रखना पड़ेगा। Our next topic is C++ tools. In the real world, the tools is something, usually a physical object, that helps you to get a certain job done promptly. Well, this holds true with the programming world too. The tool is in programming is some piece of software which, when used in the code, allows you to program faster. There are probably tens of thousands, if not millions, of different tools across all the programming language. Most crucial tools considered by many is an IDE, an integrated development environment. An IDE is a software which will make your coding life so much easier. IDEs ensure that your file and folders are organized and give you a nice and clean way to view them. अब आपको उर्दू में बताता हूँ। इन द रियल वर्ल्ड, एक सच्ची ज़िंदगी के अंदर, एक सच्ची दुनिया के अंदर, टूल्स कोई फिज़िकल चीज़ होते हैं, फिज़िकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि आपको हेल्प करती है आपकी किसी भी जॉब को, किसी भी काम को ख़त्म करने में। बट प्रोग्रामिंग में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसका क्या हाथ है कि प्रोग्रामिंग में ये सम पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं विच व्हेन यूज द कोड अलाउज टू प्रोग्राम फास्टर। तो ये अलाउ करते हैं प्रोग्राम को कि वो रन फास्ट हो, ये फास्ट रन करते हैं। डैट इज़ अगर कोई भी प्रोग्राम मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का है तो वो स्लोली कंपाइल हो के वो रन होगा। इससे बेटर है कि उसमें ऐसे टूल्स का, ऐसे आईडीईज़ का, जिसको हम लोग कंपाइलर कहते हैं, ऐसे आईडीईज़ का हम इस्तेमाल करते हैं जो कि उसकी कंपाइलेशन में फास्टर काम करते हैं, उसकी कंपाइलेशन में काम करते हैं ताकि वो फास्टली रन हो, फास्टली हमें रिज़ल्ट या आउटपुट हमें दे। आई होप कि आप सबको ये तीनों कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, सी प्लस प्लस सिंटैक्स और सी प्लस प्लस टूल के बारे में। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि नए आने वाली वीडियो से आप खुद इस्तेफादा कर सकें। खुदा हाफिज़।